ہر سال کی طرح اس سال بھی تلوجہ علاقے کی مسجد عائشہ کی جانب سے مدرسے کے ٹیچرسوں کو عمرہ پہ جانے کا ایک گفٹ دیا گیا، جس میں 3 جو ہے استادوں کا نام آیا ہے، اور آج بڑا ہی خوشی کا موقع یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو۔ مسجد عائشہ میں کافی لوگوں کی جو ہے لائن لگی ہے، یہاں پر جو استاد عمرہ کے لیے جو ہے نکلنے والے ہیں ان کو ملنے کے لیے، ان سے دعائیں کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں۔ آپ کو ہم جو ہے استادوں سے ملواتے ہیں، آئیے۔ ممبئی اسٹار نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے سر۔ مولانا بہت بہت مبارک ہو ممبئی اسٹار نیوز کی جانب سے کہ آپ کا بھی جو ہے نام عمرہ کی لسٹ میں آیا ہے، گفٹ ملا ہے آپ کو۔ لوگوں کی زندگی نکل جاتی ہے عمرہ پہ جانے کے لیے، مکہ اور مدینہ دیکھنے کے لیے لوگوں کے سپنے ہی رہ جاتے ہیں، مگر مسجد عائشہ نے جو ہے آپ کا یہ سپنا پورا کیا ہے۔ کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور جتنی دعائیں مدرسہ عائشہ کے ذمہ دار اور ان کے معاون کے لیے اگر کیا جائے کم ہے، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اللہ نے ساری چیزیں مہیا عطا کی ہے، لیکن ان کے باوجود جا نہیں پاتے ہو۔ اور آپ جا رہے ہو، آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے کچھ ہی گھنٹوں میں، کچھ ہی جو ہے وقت میں آپ مکہ میں ہوگے، مدینہ میں ہوگے، وہاں پہ جو ہے نماز ادا کی جائے گی، وہاں پہ دعائیں کی جائے گی، کیسا لگ رہا ہے آپ؟ میں ابھی سے مجھے جو فیلنگ محسوس ہو رہی ہے کہ وہاں جانے کے بعد کیا ہوئے گا، میں الفاظ میں دہرا نہیں سکتا ہوں، لیکن میں ابھی سے وہاں کی جو ہوائیں ہیں، جو وہاں کے رنگ روپ ہیں، وہ ہماری فیلنگ کو اور اجاگر کر رہی ہے۔ مسجد عائشہ کی جانب سے جو ہے یہ فری عمرہ کا پیکیج دیا گیا ہے۔ مسجد عائشہ کے صدر کو کیا کہیں گے، کس طریقے سے شکریہ ادا کریں گے آپ ان کا؟ ہم ان کا شکریہ اس انداز میں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم الفاظ، ایک بہت ہی قیمتی باتیں ان کے دل میں ڈالی ہے کہ وہ اساتذہ کا عمرے کے ذریعے سے ان کو اعزاز سے نوازے۔ یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے افروز بھائی کو۔ ماشاءاللہ، یہاں پہ خوشی کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے ساتھ میں ایک اور استاد یہاں پر ہے۔ استاد جی، محمد تبریز۔ کتنے سال سے آپ یہاں پر جو ہے مسجد عائشہ میں ہوں؟ جی، تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ 2 سال کا بہت ایک مسجد میں کام کرنا بہت ہی کم ہے۔ 2 سال کئی سالوں نکل جاتے ہیں استادوں کو عمرہ پہ جانے کے لیے اور مکہ مدینہ دیکھنے کا، ایک بولتے نا سپنا ہی رہ جاتا ہے، مگر مسجد عائشہ نے آپ کو دوسرے ہی سال میں جو ہے عمرہ پہ جانے کا موقع دیا، ایک گفٹ آپ کو ملا ہے۔ کیا کہیں گے، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی، بہت اچھا۔ میں بھی اپنے تعلیمی کے زمانے میں سوچتا تھا کہ کبھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی مال دولت دیا تو ہم بھی بیت اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن جب میں یہاں مدرسہ عائشہ میں آیا تو پہلے ہی سال میں مولانا توقیر صاحب کا نام نکلا اور دوسرے ہی سال میں ہمارا نام آیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مدرسہ عائشہ میں تمام تعاون کرنے والوں کا، جنہوں نے اپنے تعاون سے ہم سب کو انتظام کیا عمرہ پر جانے کے لیے۔ اللہ کے گھر کا نظارہ جو ہے کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے سامنے ہوگا، اور آقا کے روزے کی جالی کو آپ جو ہے چھونے والے ہو۔ کیسا فیل کر رہے ہو آپ اندر سے؟ کتنی خوشی آپ کو محسوس ہو رہی ہے، کتنی بے چینی ہے آپ کے دل میں؟ جی، خوشی تو اتنا ہے کہ ہم اپنے باتوں سے اظہار نہیں کر سکتے، بس اتنا ہے کہ بلایا ہے ہمیں سرکار نے مدینہ، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم مدینہ جائیں گے اور مدرسہ عائشہ میں تمام تعاون کرنے والوں کے لیے بھی ہم دعائیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن حضرات نے بھی مدرسہ میں تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان سب کو بھی جلد ہی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ مولانا کیا کہیں گے، کافی بار دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں کام کرنے والے جو مؤذن ہوتے ہیں، مولانا ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے، مگر مسجد عائشہ ایک ایسی مسجد ہے جہاں پر استادوں کا کافی اچھے سے خیال رکھا جاتا ہے۔ اب
यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया है कि पिछले साल 2024 में से ये एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है कि उम्रा पे जाने का एक गिफ्ट जो अफरोज़ भाई ने सोचा है, उस हिसाब से तौकीर मौलाना का नाम आया था पहले। अब इस बार 2025 में 3 मौलानाओं का नाम आया है, जिसमें आपका भी नाम है। कैसे लग रहा है आपको? कितने साल हो गए मस्जिद आयशा में आपको काम करते हुए, और अब जो है आपको एक उम्रा का फ्री गिफ्ट मिला है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मदरसा आयशा का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो मदरसा आयशा है, जब हम लोग आए थे, हमको यहाँ आए 2 साल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हम यहाँ आए हैं तो हमारे आने के बाद 1 साल बाद उम्रा का पैकेज चालू हुआ। सबसे पहले साल में मौलाना तौकीर साहब गए, फिर उसके बाद दूसरा साल हम लोग का नाम आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना खुशी है, जाने की इतना खुशी है कि उसको लफ्ज़ों में और बातों से बयान नहीं कर सकते। काफ़ी लोगों के पास करोड़ों रुपए होते हैं मगर उन्हें जो है तौफीक नहीं मिलती। आप जवानी में उम्रा कर रहे हो, तो ये एक अल्लाह की मोहब्बत और एक नबी का प्यार जो है आपको वहाँ पर लेकर जा रहा है। किस तरीके से मस्जिद आयशा का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने जो है ये आपका जो ख्वाब इतने जल्दी पूरा किया? क्या लगता है आपको, किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? जी, हम लोग जैसे मदरसे में पढ़ते थे तो एक ख्वाहिश होती थी, अल्लाह ताला हम लोग को एक ख्वाहिश होती थी कि हम भी खूब पैसा कमाएंगे, जल्दी जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने बुला लिए, तो हम लोग को जवानी में कबूल कर लिए हैं, तो जाने की बहुत खुशी है। इस तरीके से मुफ्ती मामून साहब ने कहा है कि वहाँ पर दुआएं कबूल होती है। जिस तरीके से मक्का को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ दुआएं जो मांगते हैं वो कबूल होती है। क्या सोचा है आपने आपकी जो है क्या दुआ रहेंगी? इंशाल्लाह दुआ तो सबके लिए करेंगे जी, और जो अपनी दुआ है सीक्रेट है। हमारे लिए भी दुआ करना। ये थे हमारे साथ में मस्जिद आयशा के टीचर्स, जिनको मस्जिद आयशा ने फ्री उम्रा पैकेज का जो है गिफ्ट दिया है। हमारे साथ में मस्जिद आयशा के सीनियर टीचर मौलाना तौकीर साहब मौजूद है, जिनका नंबर सबसे पहले आया था पिछले साल। उम्रा के फ्री पैकेज का लाभ उठा चुके हैं, और आज जो है 3 मौलानाओं का नाम आया था। 2025 में रमज़ान में अनाउंस हुआ था, उन्हें गिफ्ट दिया गया था। आज उनका जो है जाने का वक्त आ चुका है। कैसा लग रहा है आज मस्जिद आयशा का माहौल क्या है? मस्जिद आयशा का माहौल आप देख रहे होंगे, यहाँ दावत चल रही है और लोग, पूरे इलाके के लोग खुश हैं। हकीकत ये है कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था, जो जज्बात थे मेरे दिलों के, उससे ज़्यादा इस वक्त मैं खुश हूँ, इसलिए कि हमारे असातिज़ा किराम जा रहे हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे कदम से कदम मिलाकर हमेशा हमारे साथ काम आते हैं। मदरसा आयशा के बच्चों के लिए बहुत मोहब्बतें लुटाते हैं, आज वो जा रहे हैं। मैंने इससे पहले भी जब मेरा फ़र्स्ट टाइम नाम आया था तो मैंने यही कहा था कि काश कोई भी उस्ताद मेरी जगह चला जाता, और वही हुआ। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की। एक लोगों का नाम आना था, लेकिन इस साल 3 लोग जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम लोगों ने आज इरादा भी किया है कि जो 6 उस्ताद बचे हैं वो पूरे अगले साल जाएं। तो ये उसी जो है दिली कैफियत का नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 लोगों को कबूल फरमाया है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में 6 लोग जाएंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है। और यहाँ जो मस्जिद आयशा, मदरसा आयशा से रिलेटेड लोग हैं, उनकी यहाँ से मोहब्बतें हैं जो असातिज़ा किराम को इस कदर जो है सुरखरू बनाती हैं। ये मोहब्बत बरकरार रहेगी तो इंशाअल्लाह उलमा के कदर व कीमत मज़ीद लोग समझेंगे, और देश के हर खित्ते में मकातिब और मदारिस के असातिज़ा, इमाम और मुअज़्ज़िनीन को ये एज़ाज़ लोग ज़रूर नवाजेंगे। एक तरह से ये जगाया जा रहा है लोगों को कि साहब, ये मदरसे और मस्जिद के इमाम और ये मकतब के उस्ताद, ये सिर्फ जो है 8-10 हज़ार वाले लोग नहीं हैं। आप इनको एज़ाज़ दीजिए, ये इस लायक हैं कि इनको जहाँ तक आप एज़ाज़ देंगे वो कम है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं, और नबी के दियार में इनको भेजने का इंतज़ाम मदरसा आयशा की जानिब से किया जा रहा है। ये बहुत, मतलब क्या बताया जाए, कैफियत दिल की ऐसी हैं जो ज़ुबान पर नहीं आ पाती हैं। ये तो अल्फाज सजे सजाए हैं जो आ रहे हैं, लेकिन जो असली अल्फाज है वो रुक जा रहे हैं दिलों में। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे इंडिया के मस्जिदों के ट्रस्टियों को आप क्या मैसेज देंगे? इस तरीके का जो माहौल आज मस्जिद आयशा में नज़र आ रहा है कि जो टीचर्स है, जो मुअज़्ज़िन हैं और जो उस्ताद है, उनको इतनी इज़्ज़त दी जा रही है, यहाँ पर उम्रा का पैकेज फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है, तो पूरे इंडिया के मस्जिदों के
खास करके ट्रस्टियों को आप क्या मैसेज दोगे कि उनका जो उनकी मस्जिदों में जो मौलाना हैं और जो मौज़िन हैं और जो टीचर्स हैं उनके मस्जिदों में पढ़ाते हैं बच्चों को, उनके लिए किस तरीके की खिदमत होना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं बस चंद लफ्ज़ों में ये कहूँगा कि हम इमाम रखते हैं, हम ग़ुलाम नहीं रखते हैं। इमाम का मतलब होता है सरदार, इमाम का मतलब होता है हमारे इलाके का सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी। तो जब हम इमाम रख रहे हैं तो इमाम की इज़्ज़त, इमाम की वक़ात और इमाम का एज़ाज़, इमाम की ताज़ीम उसी अंदाज़ में करना पड़ेगा, इसलिए कि ये वारिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जहाँ कहीं भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस के साथ ज़्यादती होती है, चाहे ट्रस्टी करे, चाहे मस्जिद या मदरसे के ज़िम्मेदार या मोहतमिम करें या कोई भी करे, यकीन जानिए वो आदमी कभी भी इज़्ज़त के साथ दुनिया में नहीं रह सकता है। तो मैं तो यही मैसेज दूंगा कि हर हाल में उलमा का एज़ाज़ करना चाहिए, अइम्मा का, बच्चे जो मकातिब में पढ़ते हैं उनके असातिज़ा का एज़ाज़ करना चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी भी बनाएगा, आपकी आखिरत भी बनाएगा। ये एज़ाज़ हमेशा होना चाहिए, सिर्फ़ मस्जिद के ट्रस्टी या मस्जिद के मेंबरान ही नहीं, मदरसे के मोहतमिम ही नहीं, हर आवाम को भी चाहिए कि उलमा को वो इज़्ज़त दें, अइम्मा को वो इज़्ज़त दें जो इज़्ज़त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, और अपना वारिस बनाकर जो इज़्ज़त ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो इज़्ज़त देना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज़्ज़त दी है और जो मर्तबा और मकाम बताया है उस मकाम के हिसाब से इज़्ज़त देना चाहिए। अगर कोई भी तानाशाही करे मस्जिद या मदरसे में या इस तरह से उलमा और अइम्मा को या उनको जलील करे तो वो ख़ुद जो है दुनिया में भी उसकी सज़ा पाता है और आखिरत में भी सज़ा पाता है। लेकिन जो इस तरह से एज़ाज़ देता है जैसे आज मदरसा आयशा ने दिया है, बहुत से ऐसे मदारिस और मकातिब हैं जहाँ असातिज़ा को वाकई एज़ाज़ दिया जाता है, उन्हीं में से ये मदरसा भी है। यकीन जानिए वो दुनिया के अंदर भी सुरखरू होता है, आखिरत में भी सुरखरू होता है। आपको बस एक मैसेज दूंगा कि अफरोज़ भाई ने चाहा है कि सब उस्ताद उम्रा कर लें, तो आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पिछले साल भी उन्हें उम्रा कराया और इस साल फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ A to Z। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ है कि जो दूसरों को उनके घर तक भेजता है अल्लाह ताला खींच के उसे बुला लेते हैं। माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ का जज्बात आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है मौलाना के दिलों में। पिछले साल एक जो है गिफ्ट मिला था, मौलाना तौकीर साहब गए थे उम्रा के लिए। इस साल 3 मौलानाओं को मिला है गिफ्ट, उम्रा पैकेज का पूरा पैकेज का गिफ्ट मिला है। और आने वाले जो साल है उसमें क्या इरादा रखते हैं आपके, कितने मौलानाओं को जो है दिया जाएगा मैंने फ्री उम्रा गिफ्ट? बताया तकरीबन 6 उलमा बचे हैं और कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह अगले साल सब लोग उम्रा कर लें, इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में तौकीर मौलाना, ये मस्जिद आयशा के सीनियर टीचर है, सीनियर जो है इमाम भी है यहाँ के। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का जज्बात लोगों के दिलों में है, किस तरीके की मोहब्बत यहाँ के मौलानाओं को, यहाँ के टीचर्सों को जो है दी जाती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फ्री गिफ्ट पूरा पैकेज यहाँ पे उम्रा का दिया गया है। पिछले साल 1 मौलाना गए थे, इस साल 3, और इनका इरादा ये है कि आने वाले साल में पूरे के पूरे 6 मौलानाओं को जो है उम्रा का पैकेज जो है ये रमज़ान में अनाउंस करेंगे। तो ऐसी दोस्तों तेज़ ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मुंबई स्टार न्यूज़। कैमरामैन सफ़ान के साथ में मैं नूर। और